हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का लेसन 5 जिसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ गुलिवर। एडवेंचर्स मीन्स होता है साहसिक कार्य। गुलिवर एक व्यक्ति का नाम था जो कि एक नाविक था। एक बार वो यात्रा करते समय अवसरवश लिलीपुट पहुंचा, तो उसके बारे में ये कहानी बताई गई है कि किस तरह से पहुंचा, कैसे वहाँ के लोग थे। तो सबसे पहले हम लेसन की रीडिंग करेंगे, साथ साथ आप भी रीडिंग करेंगे। लेसन का नाम है एडवेंचर्स ऑफ गुलिवर, जो कि पृष्ठ संख्या 25 पे है। बुक खोल लीजिए। लेसन है आपका, गुलिवर वाज अ डॉक्टर हु सर्वड ऑन वेरियस शिप्स गोइंग ऑन लॉन्ग voyages. Once he set out on a ship named Antelope. During the voyage, a large storm rose in the sea. The ship wrecked. Nothing is known about the fate of sailors, people, and their goods. However, we know about Gulliver. He swam for many days and managed to reach a shore. Gulliver was extremely tired, so he fell asleep. He did not know how long he slept. When he awoke and tried to rise and sit up, he could not. He found that he was securely tied to the ground. Even his hair had been so tied that he could not see anywhere but towards the blue sky. He could listen to some feeble noises nearby, but he was unable to look around. He wondered who could have captured him. After some time, Gulliver felt as if something was creeping on his left leg and moving towards his chest. He could anyhow manage to look down. He was amazed to see a tiny man, hardly 6 inches in height, just like a small toy. Dressed like a warrior, he had a tiny bow in one hand and a tiny arrow in another. He stood erect, ready to shoot the arrow at him. An army of over 40 men followed this tiny man. Gulliver groaned. They all were petrified to the extreme and tried to run away, some of them tumbling down to earth and getting hurt. After some time, the leader of the tiny people came right up to his neck. He had a sword barely 3 inches in height and poked it into Gulliver's nose. It was so ticklish that Gulliver could not help but sneeze. The air current was so swift that the tiny leader flew away into the air and fell on the ground. The tiny people were now too scared to come near him. Gulliver glanced sideways. He could see hundreds of tiny people. He wondered if he was in the real world. The tiny people erected a platform about 4 feet away to his right. A tiny man climbed up it. From his class, he looked like a king. He appeared to speak loudly, but it was hardly audible to Gulliver. Also, it was a strange language, so he could not understand even a word. Gulliver broke his one hand free. It terrified the tiny people. Using the sign language, he tried to convey that he did not understand anything. He also signaled them that he did not mean to harm them in any way. He was hungry too, so he signaled to them. The king could understand him with some difficulty. Food was arranged for him. About 100 men carrying baskets and buckets full of different kind of things marched to his mouth and emptied them into his mouth. The food had a strange taste, but he liked it.
He felt some difficulty eating it while lying. Perhaps the tiny people had also fed him some intoxicant, so he fell asleep. These tiny people belonged to the kingdom of Lilliput. Not only the people but also the horses, animals, and trees were equally diminutive. The king ordered his soldiers to carry Gulliver to the capital of Lilliput, so several hundred carpenters were engaged to make a large carriage on which he could be loaded. Joining together several planks, they made a carriage 3 feet high with 22 wheels on either side. Gulliver was fast asleep all this while. Thousands of Lilliputians loaded him onto the carriage. Their horses too were tiny. With a great effort, they carried him to the capital. Gulliver was kept in a temple. It had a large courtyard without a roof, surrounded by a 2 feet high boundary. The place looked beautiful. Gulliver put in thin fetters, which he could easily break free. But he did not want to alarm the tiny people. He thought if they could help him go back to his country, so he kept patience. He made friendly gestures to ask them. The next time Gulliver was fed, he was sitting up, so he could eat better. In the end, he blenched out loudly. It was enough to frighten the people around. They ran helter-skelter. Gulliver was something of a wonder to the Lilliputians. They all came to visit him. Some mischief mongers too came. One day, one of them hit him with an arrow. It pricked Gulliver near the left eye, causing him much pain. At this, the soldiers arrested 6 people on the basis of doubt. They thought it best to hand them over to Gulliver, so they pushed them towards him. Gulliver caught 5 of them and put them into his pocket. Then he put the 6th one on his palm and brought him near his mouth as if he wanted to eat him alive. This petrified the Lilliputians as well as that tiny man. He cried helplessly. Then Gulliver set him free. People sighed in relief. Soon he freed the others 5 too. It had favorable effect on the tiny people. Now he was freed from all bonds. He could walk here and there, but he had to be careful always, lest he should crush some building or person under his feet. One day Gulliver lay on the floor when the Lilliputians king approached and said, "O great mountain man, we have held a royal council and have decided to help you go away, for your appetite can make us starve." "Thank you," said Gulliver softly, "but there is a condition. You will have to help us in the war with the kingdom of Blefuscu." The king emphasized. Why did the war start? Asked Gulliver. That's a long story behind it. This war has been raging for the past even 7 years. The Blefuscu can once seized our 2 fish travelers. We requested them to release the ship, but they refused. As such, the war started. Ever since, they have kept attacking us. Their strong navy has been causing constant trouble to us, the king informed. "I see. They have destroyed all our warships. This is why I seek your service," the king said. Gulliver decided to help the Lilliputians.
He then went to the seashore. An 800 feet wide bay separated Lilliput from Bluefisco. He saw with his telescope a large fleet of miniature ships. The beach was barely 4 feet deep. However, it was deep enough for the tiny people's ship to sink. The Blefuscans too were as tiny as the Lilliputians. Gulliver took out his housewife and hairpins. He wove the threads thrice to strengthen them and turned his hairpins into hooks. Then he put off his shoes and made his way to the Blefuscan shore, wading through the waist-high sea water. At this hour, the Blefuscan navy was approaching the shore of Lilliput to invade. The very sight of this gaunt man petrified their sailors and fighters to the extreme. Many of them locked themselves in the cabins, while others jumped into the sea to swim back to the shore of Blefusco. Gulliver took out the hooks and threads, tied across the prow of each ship, and taking the thread on his shoulders, dragged the ship towards the shore of Lilliput. The Lilliputians were all joy at this sight. "Hurrah, hurrah!" they shouted. The king too arrived on the shore to welcome him. The Blefuscan's king sought peace and promised not to attack Lilliput ever again. Soon Gulliver was busy making a boat to set off back home. It took him several days. On the day of his departure, the Lilliputian king presented Gulliver 50 bags of silver coins and a picture of Lilliput. They also loaded on the boat 300 fried sheep and several pails of water for use during the voyage. Gulliver also took with him a miniature horse, a few cows and oxen alive to show his people back home. इसके बाद बच्चों आप लोग इसका अर्थ देखेंगे। गुलिवर वाज अ डॉक्टर। गुलिवर एक चिकित्सक था। हु सर्व जो सेवा करता था ऑन वेरियस शिप्स। वेरियस मीन्स अलग अलग या भिन्न भिन्न, अलग अलग जहाज़ पर सेवा करता था। गोइंग ऑन लॉन्ग वैवेज। वैवेज मीन्स होता है समुद्री लंबी यात्रा। जो समुद्री लंबी यात्रा पर जाकर अलग अलग जहाज़ पर सेवा किया करता था। तो गुलिवर एक डॉक्टर था, एक परिचारक था जो लंबी समुद्री यात्रा पर जाकर अलग अलग जहाज़ पर लोगों की सेवा किया करता था। वंस एक बार ही सेट आउट ऑन ए शिप। वह एक जहाज़ पर बैठकर निकला। नेम्ड एंटीलोप। उस जहाज़ का नाम एंटीलोप था। ड्यूरिंग द वैवेज। यात्रा के दौरान। ए लार्ज स्टॉर्म। एक विशाल तूफान, भयंकर तूफान रोज़ उठा इन द सी। समुद्र में। यात्रा के दौरान समुद्र में एक भयंकर तूफान आया। द शिप रेक्ड। रेक्ड मीन्स टूट गया। जहाज़ टूट गया। नथिंग इज़ नोन। कुछ नहीं जाना जाता है। अबाउट द फेट। भाग्य के बारे में। ऑफ अदर सेलर्स। अन्य नाविकों के। पीपुल लोगों के। एंड दियर गुड्स और उनके सामानों के। तो नाविकों, लोगों और उनके सामानों के भाग्य के बारे में कुछ जाना नहीं जाता है। हाउएवर फिर भी वी नो हम जानते हैं। अबाउट गुलिवर गुलिवर के बारे में। फिर भी हम गुलिवर के बारे में जानते हैं। ही स्वयं वह तैर कर चला गया। फॉर मेनी डेज कई दिनों तक तैरता रहा। एंड मैनेज्ड टू रीच और पहुँचने में व्यवस्थित हुआ, सफल हुआ। ए शोर एक तट पर। वह कई दिनों तक तैरता रहा और एक तट पर पहुंचने में सफल हुआ। गुलिवर वाज एक्सट्रीमली टायर्ड। एक्सट्रीमली मीन्स होता है बहुत ज़्यादा। गुलिवर बहुत ज़्यादा थका हुआ था। सो इसलिए ही फेल अस्लीप वह सो गया। ही डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग ही स्लेप्ट वह नहीं जानता था कि वह कितने समय तक सोया, कितनी देर सोया। When he awoke means जागा। and tried to rise और उसने उठने का प्रयास किया। and sit up और बैठने का।
जब वह जागा और उसने उठकर बैठने का प्रयास किया, ही कुड नॉट, तो वह ऐसा ना कर सका। ही फाउंड, उसने पाया, दैट ही वाज सिक्योरली टाइड, सिक्योरली में सुरक्षित ढंग से, टाइड उसे बांधा गया था, टू द ग्राउंड, ज़मीन से। तो उसने पाया कि उसे भूमि से बहुत ही सुरक्षात्मक ढंग से बांधा गया था। इवन हिज हेयर, यहाँ तक कि, इवन मीन्स यहाँ तक कि, हिज हेयर, उसके बाल, हैड बीन सो टाइड, इस तरीके से बांधे गए थे, दैट कि ही कुड नॉट सी, वह देख नहीं सकता था, एनीवेयर, किधर, किसी भी तरफ, बट टुवार्ड्स द ब्लू स्काई, केवल नीले आकाश की ओर। यहाँ तक कि उसके बाल भी ऐसे बांधे गए थे कि वह नीले आकाश की ओर देखने के अलावा किसी और तरफ देख नहीं सकता था। He could listen to some feeble noises. He could listen, वह सुन सकता था, some, कुछ, feeble, कमज़ोर, noises, शोर, nearby, पास ही। वह अपने पास ही कुछ कमज़ोर आवाज़ या शोर सुन सकता था, बट, लेकिन, ही वाज अनेबल, वह अयोग्य था, टू लुक, देखने के, अराउंड, चारों ओर, लेकिन वह चारों ओर देखने में अयोग्य था। ही वॉन्डर्ड, उसे आश्चर्य हो रहा था, हु कुड हैव, कौन कर सकता है, कैप्चर्ड, कैदी, हिम, उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसे कैद कौन कर सकता है या उसे कौन बांध सकता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, गुलिवर फेल्ट, गुलिवर को लगा, एज इफ, मानो कि, समथिंग, कोई चीज़, पास क्रीपिंग, रेंग रही हो, ऑन हिज लेफ्ट लेग, उसके बाएं पैर पर। कुछ समय के बाद गुलिवर को लगा मानो कोई चीज़ उसके बाएं पैर पर रेंग रही हो, एंड मूविंग, और चल रही हो, टुवार्ड्स हिज चेस्ट, और चलकर उसके सीने की तरफ आ रही हो। ही कुड एनी हाउ, वह किसी तरह से, मैनेज्ड, टू लुक डाउन, उसने किसी तरह से नीचे देखने में की व्यवस्था की, या उसने किसी तरीके से नीचे देखा। ही वॉज अमेज्ड, वह चकित हो गया, टू सी, देख कर, ए टाइनी मैन, एक छोटे व्यक्ति को, वह एक छोटे व्यक्ति को देखकर चकित हो गया। हार्डली 6 इंचेस इन हाइट, हार्डली मीन्स मुश्किल से, 6 इंचेस इन हाइट, हाइट मीन्स लंबाई, मुश्किल से 6 इंच लंबा था, यानी मुश्किल से उस व्यक्ति की लंबाई 6 इंच की थी। जस्ट लाइक आ स्मॉल टॉय, जो एक छोटे खिलौने के समान लग रहा था। ड्रेस्ड लाइक आ वॉरियर, और उसने लाइक ए वॉरियर, वॉरियर मीन्स होता है योद्धा, उसने एक योद्धा जैसा वस्त्र पहना था। ही हैड अ टाइनी बो इन वन हैंड, उसके एक हाथ में एक छोटी सी धनुष थी, एंड ए टाइनी एरो इन अनदर, और दूसरे हाथ में एक छोटा तीर था। ही स्टूड इरेक्ट, इरेक्ट में सीधा, वह सीधा खड़ा हो गया, रेडी टू शूट, मारने के लिए तैयार होकर, द एरो, तीर, एट हिम, उसकी ओर, वह तीर उसकी ओर मारने के लिए तैयार होकर सीधा खड़ा हो गया। एन आर्मी ऑफ ओवर 40 मैन, और लगभग 40 लोगों की सेना, फॉलोड दिस टाइनी मैन, उस छोटे व्यक्ति के पीछे थी। लगभग 40 लोगों की सेना उस छोटे व्यक्ति के पीछे थी। गुलिवर ग्रोन्ड, गुलिवर कराहा, उसे दर्द हुआ तो वो कराहा। दे आल वर पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड मीन्स डर गए, वे सभी डर गए, टू द एक्सट्रीम, इतना डर गए, यानी वे सभी लोग बहुत डर गए। एंड ट्राइड टू रन अवे, और उन्होंने वहाँ से भागने का प्रयास किया। सम ऑफ देम टम्बलिंग डाउन, कुछ तो लुढ़क कर गिर गए, टम्बल मीन्स होता है लड़खड़ा कर गिरना, कुछ तो लुढ़क कर या लड़खड़ा कर गिर गए, टू द अर्थ, भूमि पर गिर गए, एंड गेटिंग हर्ड, और उन्हें चोट आ गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द लीडर ऑफ द टाइनी पीपुल, लीडर मीन्स नेता या मुखिया, उन छोटे लोगों का नेता या मुखिया, केम राइट अप टू हिज नेक, सीधे चढ़कर उसके गर्दन पर आया। कुछ समय के बाद उन छोटे लोगों का जो मुखिया था वह उस पर चढ़ा और सीधे उसके गर्दन की तरफ आया। ही हैड अ स्वॉर्ड, उसके हाथ में तलवार थी, बेयरली 3 इंचेस इन लेंथ, जो मुश्किल से
3 इंच लंबी थी। एंड पोक्ड इट इनटू गुलिवर्स नोज, और उसने पोक्ड मीन्स घुसेड़ दिया, और उसने इसे यानी तलवार को गुलिवर की नाक में घुसेड़ा। इट वाज सो टिकलिश, उससे इतनी गुदगुदी हुई दैट गुलिवर कुड नॉट हेल्प, कि गुलिवर को और कोई सहायता ना मिली, बट स्नीज, लेकिन उसे छींक आ गई। द एयर करेंट, हवा का झोंका, वाज सो स्विफ्ट, इतना तेज़ था, यानी जब उसने छींका तो उसकी छींक से उत्पन्न हवा का झोंका इतना तेज़ था दैट द टाइनी लीडर, की वह छोटा सा मुखिया फ्लू अवे इनटू द एयर, हवा में उड़ गया, एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और वह ज़मीन पर गिर गया। द टाइनी पीपुल वर नाउ टू स्केयर्ड, वह छोटे लोग अब टू स्केयर्ड, इतना अधिक डर गए, टू केम नियर हिम, उसके पास वह नहीं आना चाहते थे। अब वे छोटे लोग उसके करीब आने के लिए बहुत डरे हुए थे। गुलिवर ग्लांस्ड साइडवेज, ग्लांस मीन्स एक नज़र देखना। गुलिवर ने इधर उधर एक नज़र देखा। ही कुड सी हंड्रेड्स ऑफ टाइनी पीपुल, वह सैकड़ों छोटे छोटे लोगों को देख सकता था। ही वांडर्ड, उसे आश्चर्य हो रहा था, इफ ही वाज इन द रियल वर्ल्ड, कि क्या वह वास्तविक संसार में था। द टाइनी पीपुल इरेक्टेड ए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मीन्स एक चबूतरा। द टाइनी पीपुल, वह छोटे लोग, इरेक्टेड सीधे खड़े हुए थे, ए प्लेटफॉर्म एक चबूतरे पर, अबाउट 4 फीट अवे, जो लगभग 4 फीट दूरी पर था, टू हिज राइट, उसके दाहिनी ओर से, यानी उसके दाहिने हाथ से। वे छोटे लोग एक प्लेटफार्म पर सीधे खड़े हुए थे, जो कि उसके दाहिनी ओर से लगभग 4 फीट की दूरी पर था। ए टाइनी मैन क्लाइम्ड अप इट, एक छोटा व्यक्ति उस पर चढ़ गया। फ्रॉम हिज क्लास, अपने कपड़े से। ही लुक्ड लाइक अ किंग, वह एक राजा के समान लग रहा था। ही अपीयर्ड टू स्पीक लाउडली, और अपीयर्ड मीन्स लगना, ऐसा लग रहा था कि वह तेज़ी से बोल रहा हो। बट इट वॉज हार्डली ऑडिबल टू गुलिवर, हार्डली मीन्स मुश्किल से, ऑडिबल मीन्स सुनने योग्य, लेकिन यह मुश्किल से ही गुलिवर के सुनने योग्य था। आल्सो इट वाज स्ट्रेंज लैंग्वेज, और यह अजीब, उनकी भाषा अजीब भी थी। सो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इवन ए वर्ड, इसलिए वह उनके एक शब्द भी ना समझ सका। गुलिवर ब्रोक हिज वन हैंड फ्री, गुलिवर ने अपना एक हाथ रस तोड़कर, ब्रोक हिज वन हैंड, यानी जिससे उसको बांधा गया था उसे तोड़कर अपना एक हाथ छुड़ाया, स्वतंत्र किया। इट टेरिफाइड द टाइनी पीपुल, इससे वे छोटे लोग डर गए। यूजिंग द साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए ही ट्राइड टू कन्वे, उसने उन्हें राजी करने का या मनाने का प्रयास किया। दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कि वह उनकी कोई भी बात समझ नहीं सकता था। ही आल्सो सिग्नल्ड, उसने यह भी संकेत दिया दैट ही डिड नॉट मीन, कि उसका कोई मतलब नहीं है, टू हार्म देम इन एनी वे, उन्हें नुकसान पहुंचाने का। उसने यह भी संकेत किया कि उसका उन लोगों को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने का कोई मतलब, कोई उद्देश्य नहीं है। ही वॉज हंग्री टू, वह भूखा भी था। सो ही सिग्नल्ड देम टू देम, इसलिए उसने संकेत करके यह भी बताया। द किंग कुड अंडरस्टैंड हिम विथ सम डिफ़िकल्टी, राजा उसे थोड़ी कठिनाई के बाद समझ सका। फूड वाज अरेंज्ड फॉर हिम, उसके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। अबाउट 100 men कैरिंग बास्केट्स, लगभग सैकड़ों लोग कैरिंग बास्केट्स, टोकरियाँ लेकर आए। लगभग सैकड़ों लोग टोकरियाँ यानी खाने से भरी हुई टोकरियाँ लेकर आए। एंड बकेट्स, और बाल्टियाँ लेकर आए, फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भरी थीं। मार्च्ड टू हिज माउथ, मार्च मतलब पैदल चलकर आगे बढ़े, टू हिज माउथ, उसके मुंह की ओर, वे पैदल चलकर उसके मुंह की ओर बढ़े। एंड इम्पटीड देम इनटू हिज माउथ, और उन्हें यानी उन टोकरियों में जो कुछ था और बाल्टियों में जो कुछ था उसे उसके मुंह में उड़ेल कर, इम्पटीड खाली कर दिया, और उसे उसके मुंह में उड़ेल कर खाली कर दिया। द फूड हैड स्ट्रेंज टेस्ट, भोजन का स्वाद बड़ा अजीब था।
बट ही लाइक्ड इट, लेकिन उसे वह पसंद आया। ही फेल्ट सम डिफ़िकल्टी इज ईटिंग इट, ही फेल्ट उसे लगा, सम डिफ़िकल्टी कुछ कठिनाई लगी, ईटिंग इट उसे खाते समय, वाइल लाइंग लेट कर उसे लेट कर खाते हुए थोड़ा परेशानी हुई। परहैप्स द टाइनी पीपल हैड आल्सो फेड हिम सम इंटॉक्सिकेंट, परहैप्स मीन्स शायद, द टाइनी पीपल हैड आल्सो फेड हिम, फेड मीन्स खिला दिया, शायद उन छोटे लोगों ने उसे खिला दिया, सम इंटॉक्सिकेंट कोई नशीला पदार्थ, शायद उन छोटे लोगों ने उसे कोई नशीला पदार्थ भी खिला दिया था। सो इसलिए ही फेल्ट अस्लीप, वह सो गया। These tiny people belonged to the kingdom of Lilliput, ये छोटे लोग लिलीपुट के राज्य में रहने वाले थे, या इन छोटे लोगों का संबंध लिलीपुट के राज्य से था। नॉट ओनली द पीपुल, न केवल वहाँ के लोग, बट आल्सो द हॉर्सेज, एनिमल्स एंड ट्रीज, लेकिन घोड़े, पशु और पेड़, वर इक्वली डिमिनिटिव, सब एक समान छोटे ही थे। द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू कैरी गुलिवर टू द कैपिटल ऑफ लिलीपुट, राजा ने सैनिकों को गुलिवर को लिलीपुट की राजधानी में ले जाने की आज्ञा दी। सो सेवरल हंड्रेड कारपेंटर्स, इसलिए सेवरल हंड्रेड कई सौ कारपेंटर्स बढ़ई वर इंगेज्ड लग गए, टू मेक बनाने में, ए लार्ज कैरेज एक बहुत बड़ी विशाल गाड़ी, ऑन विच ही कुड बी लोडेड जिस पर उसे लादा जा सके। इसलिए कई सौ बढ़ई एक विशाल गाड़ी को बनाने में लग गए जिस पर उसे लादा जा सके, यानी जिस पर गुलिवर को ले जाया जा सके। ज्वाइनिंग टुगेदर सेवरल प्लैंक्स, टुगेदर मतलब एक साथ, सेवरल प्लैंक्स कई बांस या कई लट्ठे, कई लट्ठों को एक साथ जोड़ते हुए, ज्वाइनिंग मीन्स जोड़ते हुए, दे मेड अ कैरेज उन्होंने एक गाड़ी बनाई, 3 फीट हाई जिसकी ऊंचाई 3 फीट थी, विथ 22 व्हील्स जिसमें 22 पहिए लगे हुए थे, ऑन आइदर साइड दोनों ओर। तो कई लट्ठों को जोड़ते हुए उन्होंने एक गाड़ी बनाई जो 3 फीट ऊंची थी और जिसके दोनों ओर 22 पहिए लगे हुए थे। गुलिवर वाज फास्ट अस्लीप ऑल दिस वाइल मतलब इन सारे बीच, इस बीच गुलिवर बहुत ही गहरी नींद में था। थाउजेंड्स ऑफ लिलीपुटियंस लोडेड हिम ऑन द कैरेज, हजारों लिलीपुट वासियों ने उसे गाड़ी पर लादा। दियर हॉर्सेस टू वर टाइनी, उनके घोड़े भी बहुत छोटे थे। विथ अ ग्रेट इफर्ट मीन्स होता है प्रयास, बहुत प्रयास के साथ दे कैरीड हिम थ्रू द कैपिटल, वे उसे राजधानी लेकर आए। गुलिवर वाज केप्ट इन टेम्पल मीन्स मंदिर, गुलिवर को मंदिर में रखा गया। इट हैड ए लार्ज कोर्टयार्ड, इसका आंगन, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन या बरामदा। इट हैड अ लार्ज कोर्टयार्ड विदाउट आ रूफ, उसका आंगन बहुत बड़ा था, विदाउट आ रूफ जिस पर छत नहीं थी, यानी उसका आंगन बिना छत के था और बहुत बड़ा था। सराउंडेड बाई अ 2 फीट हाई बाउंड्री, जो चारों ओर से 2 फीट ऊंची बाउंड्री यानी 4 दीवारें, जो चारों ओर 2 फीट ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ था। द प्लेस लुक्ड ब्यूटीफुल, वह स्थान सुंदर दिख रहा था। गुलिवर वाज पुट इन थिन फेटस, गुलिवर को पतली जंजीरों में रखा गया, जंजीरों में बांध कर रखा गया। विच ही कुड इजली ब्रेक फ्री, जिसे आसानी से तोड़कर वह स्वतंत्र हो सकता था। बट ही डिड नॉट वांट टू अलार्म द टाइनी पीपल, लेकिन वह उन छोटे लोगों को सतर्क नहीं करना चाहता था। ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ दे कुड हेल्प हिम गो बैक टू हिज कंट्री, कि क्या वे लोग उसे उसके देश वापस जाने में सहायता कर सकते थे। सो ही केप्ट पैसेंस, इसलिए उसने धैर्य रखा। ही मेड फ्रेंडली गेस्चर्स टू आस्क देम, गेस्चर्स मीन्स हाव भाव या व्यवहार, उसने उन लोगों के प्रति दोस्ताना व्यवहार रखा। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार गुलिवर वाज फेड, जब गुलिवर को भोजन कराया गया, ही वाज सिटिंग अप,
तो वह बैठा हुआ था। सो ही कुड बेटर, इसलिए वह अच्छे से खा सकता था। इन द एंड, अंत में, ही ब्लेंच्ड लाउडली, उसने तेजी से डकारा। इट वॉज इनफ टू फ्राइटन द पीपुल अराउंड, इट वॉज इनफ टू फ्राइटन, डराने के लिए यह पर्याप्त था। टू द पीपुल अराउंड, चारों ओर के लोगों को, यह चारों ओर के लोगों को डराने के लिए बहुत ही ज़्यादा थी। दे रैन हेल्टर स्केल्टर, वे लोग इधर उधर भाग गए। गुलिवर वाज समथिंग ऑफ ए वंडर टू द लिलीपुटियंस, गुलिवर को लिलीपुट वासियों के प्रति थोड़ा सा आश्चर्य था। दे आल केम टू विजिट हिम, वे सभी लोग उसके पास आए। सम मिस्चीफ मॉन्गर्स टू केम, कुछ बदमाश लोग भी, शैतानी करने वाले लोग भी उसके पास आए। वन डे, एक दिन, वन ऑफ देम हिट विथ एन एरो, एक दिन उनमें से एक ने उसे एक तीर से मारा। इट प्रिक्ड गुलिवर नियर द लेफ्ट आई, उसने यानी तीर से गुलिवर के बाईं आंख पर घाव लगा। काजिंग हिम मच पेन, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। एट दिस, इस पर, द सोल्जर्स अरेस्टेड 6 पीपुल, सैनिकों ने अरेस्टेड, बंदी बना लिया। 6 पीपुल, 6 लोगों को। ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, संदेह के आधार पर, इससे सैनिकों ने संदेह के आधार पर 6 लोगों को बंदी बनाया। दे थॉट, उन्होंने सोचा, इट बेस्ट, अच्छा सोचा, टू हैंड देम, कि उन्हें दे दिया जाए, उन 6 लोगों को दे दिया जाए। ओवर टू गुलिवर, गुलिवर को। दे थॉट इट बेस्ट टू हैंड देम ओवर टू गुलिवर, उन्होंने सोचा, इसे अच्छा सोचा कि इन लोगों को गुलिवर को दे दिया जाए। सो दे पुश्ड देम टुवार्ड्स हिम, इसलिए उन्होंने उन लोगों को ढकेल कर उसकी ओर बढ़ा दिया। गुलिवर काट 5 ऑफ देम, गुलिवर ने उन लोगों में से 5 लोगों को पकड़ा। एंड पुट देम इनटू हिज पॉकेट, और उसे अपनी जेब में, उन्हें अपनी जेब में रख लिया। देन, तब, ही पुट द 6th वन, उसने 6ठे व्यक्ति को पकड़ा। ऑन हिज पाम, और उसे अपने हथेली पर रखा। एंड ब्रॉट हिम नियर हिज माउथ, और उसे अपने मुंह के पास ले गया। एज इफ़ ही वांटेड टू ईट हिम अलाइव, मानो कि वह उसे ज़िंदा खाना चाहता हो। दिस पेट्रीफाइड द लिलीपुटियंस एज वेल एज मतलब होता है के साथ साथ, इससे लिलीपुट वासियों के साथ साथ वह छोटा व्यक्ति भी डर गया। ही क्राइड हेल्पलेसली, वह असहायता से चिल्लाया। देन गुलिवर सेट हिम फ्री, तब गुलिवर ने उसे छोड़ दिया। पीपुल साइड इन रिलीफ, साइड मतलब सांस लेना, इन रिलीफ में सुकून की या चैन की, लोगों ने चैन की सांस ली। सोन, जल्द ही फ्रीड फ्रॉम अदर 5 टू, उसने अन्य 5 को भी स्वतंत्र कर दिया, छोड़ दिया। इट हैड फेवरेबल इफेक्ट ऑन द टाइनी पीपुल, इससे फेवरेबल मीन्स अनुकूल, इफेक्ट प्रभाव पड़ा ऑन द टाइनी पीपुल, उन छोटे लोगों पर, इससे उन छोटे लोगों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। नाउ, अब, ही वॉज फ्रीड फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, अब वह सभी बंधनों से मुक्त था। ही कुड वॉक हियर एंड देयर, वह यहाँ वहाँ जा सकता था। बट ही हैड टू बी केयरफुल, लेकिन उसे सावधान रहना पड़ता था। ऑलवेज, हमेशा। लिस्ट, कि कहीं ऐसा ना हो। ही शुड क्रश, वह कुचल दे। सम बिल्डिंग्स, कुछ इमारत। और पर्सन, या लोगों को। अंडर हिज फीट, अपने पैरों के नीचे। लेकिन उसे हमेशा सतर्क भी रहना पड़ता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने पैरों के नीचे कोई घर या किसी व्यक्ति को कुचल दे। वन डे, एक दिन, गुलिवर ले ऑन द फ्लोर, गुलिवर फर्श पर लेटा हुआ था। व्हेन द लिलीपुटियन किंग्स अप्रोच्ड हिम, जब लिलीपुट वासियों का राजा उसके पास आया। एंड सेड, और बोला, ओ ग्रेट माउंटेन मैन, हे विशाल पर्वत जैसे व्यक्ति, यानी विशाल पर्वतीय व्यक्ति। वी हैव हेल्ड अ रॉयल काउंसिल, हमने एक राजकीय, रॉयल मीन्स राजकीय, काउंसिल मीन्स सभा आयोजित की है। हेल्ड मतलब आयोजित करना। एंड हैव डिसाइडेड, और निश्चय किया है। टू हेल्प यू गो अवे, तुम्हारी घर जाने में, सहायता करने में।
तो हे विशालकाय व्यक्ति, हमने एक राजकीय सभा का आयोजन किया है और हमने निश्चय किया है कि हम तुम्हारे जाने में सहायता करेंगे। फॉर योर एपेटाइट, क्योंकि तुम्हारी भूख ने कैन मेक अस स्टार्व, हमें भूखा मार सकती है, क्योंकि तुम्हारी भूख हमें भूखा मार सकती है। थैंक यू सेड गुलिवर, गुलिवर ने कहा धन्यवाद। सेड गुलिवर सॉफ्टली, गुलिवर ने धीरे से कहा धन्यवाद। बट देयर इज़ अ कंडीशन, लेकिन एक शर्त है। यू विल हैव टू हेल्प अस इन द वार विद द किंगडम ऑफ ब्लूफिस्को। यू विल हैव टू हेल्प अस, तुम्हें हमारी सहायता करनी होगी। राजा ने कहा गुलिवर से कि लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि तुम्हें हमारी युद्ध में, इन वार युद्ध में सहायता करनी होगी विद द किंगडम ऑफ ब्लूफिस्को। ब्लूफिस्को राज्य के युद्ध में हमारी सहायता करनी होगी। द किंग एम्फेसिस्ड, राजा ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। एम्फेसिस मतलब बात पर जोर देकर कहना। वाई डिड द वार स्टार्ट आस्क्ड गुलिवर, गुलिवर ने पूछा कि युद्ध क्यों शुरू हुआ। दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड इट, तो राजा ने उसे बताया कि दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड इट, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। दिस वार हैज़ बीन रैगिंग फॉर द पास्ट 7 years, यह युद्ध पिछले 7 वर्षों से भड़क रहा है। रैगिंग मतलब भड़कना। यह युद्ध पिछले 7 वर्षों से भड़क रहा है। द ब्लूफिस्कन्स वंस सीज्ड, ब्लूफिस्कन यानी ब्लूफिस्को वासियों ने एक बार सीज्ड पकड़ लिया था। आवर 2 फिश ट्रैवलर्स, हमारे 2 मछुआरों को। एक बार ब्लूफिस्को वासियों ने हमारे 2 मछुआरों को पकड़ लिया था। वी रिक्वेस्टेड देम टू रिलीज द शिप, हमने रिक्वेस्टेड देम टू रिलीज द शिप, हमने उनसे जहाज़ छोड़ने की प्रार्थना की थी, अनुरोध किया था। बट दे रिफ्यूज्ड, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। एज सच, इस प्रकार द वार वाज स्टार्टेड, युद्ध शुरू हुआ। इवर सिंस, तभी से। दे हैव केप्ट अटैकिंग अस, वे हम पर हमला करते रहते हैं, आक्रमण करते रहते हैं। दियर स्ट्रांग नेवी हैज़ बीन काजिंग कॉन्स्टेंट ट्रबल टू अस, उनकी स्ट्रांग नेवी, उनकी मजबूत जल सेना हैव बीन काजिंग कॉन्स्टेंट ट्रबल, कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार, ट्रबल मीन्स परेशान, टू अस, उनकी मजबूत जल सेना हमें लगातार परेशान कर रही है। द किंग इन्फॉर्म्ड, राजा ने उसे सूचना दी और उसे बताया। आई सी, गुलिवर ने कहा आई सी, अच्छा। दे हैव डिस्ट्रॉयड ऑल आवर वारशिप्स, उन्होंने हमारे, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट कर दिया है, वारशिप्स मीन्स युद्धपोत को, उन्होंने हमारे सारे युद्धपोत नष्ट कर दिए हैं। दिस इज़ वाई, इसी कारण से या यही कारण है, आई शीक योर सर्विस, मैं तुम्हारी सेवा चाहता हूँ। द किंग सेड, राजा ने कहा। गुलिवर डिसाइडेड टू हेल्प द लिलीपुटियंस, गुलिवर ने लिलीपुट वासियों की सहायता करने का निश्चय किया। ही देन वेंट टू द सी शोर, तब वह समुद्र के किनारे पर गया। एन 800 फीट वाइड बे, 800 फीट, 800 फीट वाइड मीन्स चौड़ी, बे मीन्स होता है खाड़ी, सेपरेटेड अलग कर रही थी लिलीपुट फ्रॉम ब्लूफिस्को, लिलीपुट से ब्लूफिस्को को, यानी लिलीपुट और ब्लूफिस्को के बीच 800 फीट चौड़ी एक खाई थी जिससे दोनों देश अलग हुए थे। तो एक 800 फीट चौड़ी खाई लिलीपुट को ब्लूफिस्को से अलग कर रही थी। ही सा विथ हिज टेलीस्कोप, टेलीस्कोप यानी दूरबीन, उसने अपनी दूरबीन से देखा। ए लार्ज फ्लीट ऑफ मिनिएचर्स शिप्स, फ्लीट मीन्स होता है जहाज़ों का समूह, उसने अपनी दूरबीन से एक विशाल छोटे छोटे जहाज़ों के समूह को देखा। द बीच वाज बेयरली 4 फीट डीप, बीच मीन्स होता है समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा बेयरली मीन्स मुश्किल से 4 फीट डीप, 4 फीट गहरा था। समुद्र का किनारा मुश्किल से 4 फीट गहरा था। हाउएवर, फिर भी।
इट वॉज डीप इनफ, वह पर्याप्त गहरा था फॉर द टाइनी पीपुल्स शिप टू सिंक, उन छोटे लोगों के जहाज़ को डूबने के लिए। फिर भी वह उन छोटे लोगों के जहाज़ को डूबने के लिए पर्याप्त गहरा था। द ब्लूफिस्कन्स टू वर एज टाइनी एज लिलीपुटियंस, ब्लूफिस्को वासी भी उतने ही छोटे थे जितना कि लिलीपुट वासी। गुलिवर टुक आउट हिज हाउसवाइफ, हाउसवाइफ मीन्स अपने सिलाई का सामान रखने वाली थैली, एंड हेयर पिन्स और अपने बालों में लगाए जाने वाली पिन। गुलिवर ने अपनी सिलाई के सामान वाली थैली और अपने बालों में लगाए जाने वाले पिन को निकाला। ही ओव द थ्रेड्स, उसने धागे को बुना, थ्राइस 3 बार बुना, टू स्ट्रेथन देम, उन्हें मजबूत करने के लिए। उसने धागे को मजबूत करने के लिए 3 बार लपेटा या बुना। एंड टर्न्ड हिज हेयर पिन्स इनटू हुक्स, और उसने अपने बालों के पिन को मोड़कर हुक बनाया। देन ही पुट ऑफ हिज शूज़, तब उसने अपने जूते उतारे। एंड मेड हिज वे टू द ब्लूफिस्कन शोर, और उसने ब्लूफिस्कन तट का रास्ता पकड़ा। वाइडिंग थ्रू द वेस्ट हाई सी वाटर, वाइडिंग मतलब पैदल चलता रहा, वेस्ट हाइट सी वाटर, कमर तक आए हुए पानी में वह पैदल चलकर ब्लूफिस्को के तट पर जाने लगा। एट दिस आवर, उसी बीच द ब्लूफिस्कन नेवी वाज अप्रोच्ड द शोर ऑफ लिलीपुट, ब्लूफिस्कन जल सेना लिलीपुट के तट की ओर बढ़ रही थी। टू इन्वाइड, आक्रमण करने के लिए। इसी बीच ब्लूफिस्कन की जल सेना लिलीपुट पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही थी। द वेरी साइट ऑफ दिस गेंट मैन, वेरी साइट मतलब दृश्य, ऑफ दिस गेंट मैन, इस राक्षस जैसे या विशालकाय व्यक्ति के देखकर मैन पेट्रीफाइड दियर सेलर्स, उनके सेलर मिस नाविक डर गए। एंड फाइटर्स, और उनके योद्धा भी डर गए। टू द एक्सट्रीम, बहुत अधिक। उस विशालकाय व्यक्ति को पहली बार देखकर उनके नाविक और उनके योद्धा बहुत अधिक डर गए। मेनी ऑफ देम, उनमें से कई लोगों ने लॉक कर लिया या बंद कर लिया देमसेल्वेस, स्वयं को, इन द कैबिन्स, कैबिन में, जहाज़ का अंदरूनी हिस्सा। मैनी ऑफ देम लॉक्ड देमसेल्वेस इन द कैबिन्स, उनमें से कई लोगों ने स्वयं को कैबिन में बंद कर लिया। वाइल अदर्स जम्प्ड इनटू द सी, जबकि अन्य लोग समुद्र में कूद गए। टू स्विम बैक टू द शोर ऑफ ब्लूफिस्को, ब्लूफिस्को के तट पर वापस जाने के लिए, जबकि उनमें से बाकी लोग समुद्र में कूद गए ताकि वह ब्लूफिस्को के तट पर वापस जा सकें। गुलिवर टुक आउट द हुक्स, गुलिवर ने हुक को निकाला, हुक यानी कोई फंसाने वाली चीज़, एंड थ्रेड्स, और अपने धागे निकाले। टाइड अक्रॉस द पो ऑफ ईच शिप, प्रो मीन्स होता है अगला हिस्सा, जहाज़ का अगला हिस्सा। गुलिवर ने अपने हुक और अपने धागे निकाले और प्रत्येक जहाज़ के, ईच शिप, और प्रत्येक जहाज़ के अगले हिस्से को बांधा। एंड टेकिंग द थ्रेड्स ऑन हिज शोल्डर, और धागों को अपने कंधे पर रखकर ड्राइव्ड द शिप टुवर्ड्स द शोर ऑफ लिलीपुट, ड्राइव्ड मीन्स होता है घसीट कर ले जाना। वह पूरे सारे जहाज़ों को घसीट कर लिलीपुट के तट की ओर लेकर आया। द लिलीपुटियंस वर ऑल जॉय एट दिस साइट, लिलीपुट वासी इस दृश्य पर खुशी से चिल्ला उठे, हुर्रा हुर्रा, अरे वाह अरे वाह। दे शाउटेड, वे चिल्लाए। द किंग टू अराइव्ड ऑन द शोर टू वेलकम हिम, राजा भी तट पर उसका स्वागत करने के लिए आया। द ब्लूफिस्कन्स किंग शॉर्ट पीस, ब्लूफिस्कन राजा शांति संधि चाहता था। एंड प्रॉमिस्ड नॉट टू अटैक लिलीपुट इवर अगेन, और उसने लिलीपुट पर फिर कभी न आक्रमण करने का वादा किया। सून, जल्द ही। गुलिवर वाज बिजी, गुलिवर व्यस्त हो गया। मेकिंग ए बोट, नाव बनाने में। टू सेट ऑफ बैक होम, घर वापस जाने के लिए। जल्द ही गुलिवर घर वापस जाने के लिए एक नाव बनाने में लग गया। इट टुक हिम सेवरल डेज, उसमें कई दिन लगे। ऑन द डे ऑफ हिज डिपार्चर, डिपार्चर मतलब प्रस्थान करना या विदाई।
उसके विदाई के दिन द लिलीपुटियन किंग प्रेजेंटेड गुलिवर 50 बैग्स ऑफ सिल्वर कॉइन्स। लिलीपुटियन किंग यानी लिलीपुट के राजा ने प्रस्तुत किया गुलिवर को 50 बैग्स ऑफ सिल्वर कॉइन्स, चांदी के 50 थैले, चांदी के सिक्कों के 50 थैले। तो ऑन द डे ऑफ हिज डिपार्चर, उसकी विदाई के दिन लिलीपुट के राजा ने गुलिवर को 50 चांदी के सिक्कों से भरा थैला प्रस्तुत किया एंड अ पिक्चर ऑफ लिलीपुट, और लिलीपुट का एक मानचित्र भी उसे दिया। दे आल्सो लोडेड ऑन द बोट 300 फ्राइड फिश, उन्होंने लोडेड लाद दिया ऑन द बोट, नाव पर 300 फ्राइड मीन्स भुनी हुई शीप्स भेड़ें, उसने उसकी नाव पर 300 भुनी हुई भेड़ें भी लाद दी एंड सेवरल पेल्स ऑफ वाटर, और पानी के अनेक बर्तन लादे फॉर यूज़ ड्यूरिंग द वॉयेज, यात्रा के समय प्रयोग के लिए। तो उन्होंने उसकी नाव पर 300 भुनी हुई भेड़ और पानी के कई बर्तन यात्रा के समय प्रयोग करने के लिए लाद दिए। गुलिवर आल्सो टुक विथ हिम अ मिनिएचर हॉर्स, गुलिवर ने अपने साथ लिया मिनिएचर हॉर्स, ए मिनिएचर हॉर्स एक छोटा घोड़ा, ए फ्यू काउस कुछ गाय एंड ऑक्सन और कुछ बैल, अलाइव जीवित लिए, टू शो दिखाने के लिए, टू हिज पीपुल बैक होम घर वापस आकर अपने लोगों को। गुलिवर आल्सो टुक विथ हिम अ मिनिएचर हॉर्स, अ फ्यू काउस एंड ऑक्सन अलाइव टू शो टू हिज पीपुल बैक होम, गुलिवर ने अपने साथ एक छोटा घोड़ा, कुछ गाय और बैल भी लिए ताकि वह घर वापस आकर उन्हें दिखा सकें।